أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ آج ہم بات کریں گے اسم اللہ ذات کی ابتدا اور اسم اللہ ذات کا شان نزول اور اسم اللہ ذات کا اپنے تعین کو تبدیل کرنا، یعنی کہ وحدت الوجود خدا کا احدیت سے جلوہ فروز ہو کر پھر شان نزول کرنا، اور ایسے خدا کتنی شانوں میں گیا جس کو ہم 7 آسمان بھی کہتے ہیں، وہ کیسے ان 7 شانوں میں جلوہ فروز ہوا اور وہ سب میں جلوہ فروز ہو کر بھی وہ ذات وحدہ لا شریک ہی رہی، اس کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ ذات کا صفات کے ساتھ تعلق ہے۔ ذات کی صفات ہونا ضروری ہے، اگر ذات کی صفات نہ ہو تو وہ ذات نہیں، کیونکہ ذات اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے، اور اسی طرح صفات جو ہیں وہ ذات سے پہچانی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی کی صفت دیکھتا ہے، وہ صفت موصوف کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور جو موصوف ہوتا ہے وہی ذات مطلق ہے۔ آج ہم بات کریں گے ذات کا صفت میں اور صفت کا ذات میں۔ ان سیر لاہوتی کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے، اور یہ عین توحید ہے جو صرف اہل توحید کو سمجھ آئے گی، ان لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ جن لوگوں نے اولیاء اللہ کا دامن پکڑا ہے، اولیاء اللہ کی غلامی کی ہے، اولیاء اللہ کے خدمتیں کی ہیں اور کسی کامل مرشد کے مرید ہیں۔ اور ہمارے جو مربی و مرشد کامل ہیں حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنافذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی تقریباً ساری کتابوں میں وحدت الوجود کو بیان فرمایا، وحدت الشہود کو بھی بیان فرمایا، اور حضرت کے اسی نظریے کو حضور کی بلا سلطان الفقراء فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نظریے کو اپنی کتاب عرفان میں، اور اسی وحدت الوجود کے فلسفہ کو اپنی کتاب مخزن الاسرار و سلطان الاوراد میں، اور پھر اپنے فرمودات میں، اور ان کے صاحبزادہ اور اس ناچیز کے مرشد کامل حضرت فقیر عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الہامات میں۔ یہ میں آپ کو کتابوں کے نام بھی بتا رہا ہوں تاکہ تفصیلاً آپ کو پتہ چل جائے یہ اولیاء اللہ کی جو وحدت الوجود بیان کی ہے، یہ جو انہوں نے توحید باری تعالیٰ کے یہ جلوے بیان کیے ہیں، یہ صفاتیں بیان کی ہیں، اللہ اللہ اس کا کیا مرتبہ اور کیا شان ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، سلطان العارفین فرماتے ہیں جس بندے کو وحدت الوجود کی سمجھ آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو وحدت الوجود میں گم کر دیا اور اپنی ہستی کو نہ جانا، اس ذات کی ہی مستی کو جانا، اور اسی ذات کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ رکھا، تو سلطان باہو فرماتے ہیں وہ بندہ ذات خدا تعالی میں فنا ہو کر بقا باللہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، اور ایسا طالب صادق جو بقا باللہ کے مقام پر فائز ہو جائے، ایسا طالب صادق شاہ سوار دعوت القبور ہے، شاہ سوار علم اکثیر و تقصیر ہے، اور صاحب حال دینوں و دنیا و قلب و کشف و قبر تمام کے تمام احوال کا اللہ تعالیٰ اس کو باخبر کر دیتا ہے۔ یعنی اس کو ایسا اللہ تعالیٰ کامل انسان بناتا ہے جس کو وحدت الوجود کی سمجھ آنے لگ جائے۔ اور یہ وحدت الوجود اگر ہم سمجھیں تو پورا قرآن حدیثیں وحدت الوجود ہی بیان کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے اپنے اسماء سے اپنے کیسے وہ شانوں میں آیا، آج ہم اسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر میں بتا دوں یہ ہمارا خطاب صوفیزم تصوف کو سمجھنے والے، وہ رند، وہ شراب طہورہ پینے والے لوگ
समझ सकते हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने राई के दाने के बराबर भी मार्फत दी होगी तो इंशाअल्लाह वो इस हमारे ख़जाने, इल्मी ख़जाने से, हमारे खिताबी ख़जाने से, हमारे बयान के ख़जाने से वो फयूज़ व बरक़ात हासिल करेगा और वो अपनी दुनिया और आखिरत को ठीक कर सकता है। आइए हम सैर करते हैं आज वहदतुल वजूद की और सैर करते हैं शान नज़ूल की, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु की, कि कैसे वो मर्तबाए अव्वल में कैसे अल्लाह ताला ज़ात और उसने तायुन किया अहदियत का। ज़ात थी, अभी और कोई मुकाम मरातब नहीं था, सिर्फ इब्तदा में जो मुकाम अव्वल था सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात वहदहु ला शरीक थी। और तायुन क्या था? अहदियत का। और जहान क्या था? याहूत का, हाहूत का। हाहूत जिसको हुवियत की हा भी कहा जाता है, वो जहान ये था खुदा का। अभी ज़ात अस्मा की तरफ खुदा का अभी शान नज़ूल नहीं था, यानी वो अहदियत की तन्हाई की डोली में था और कुन्तु कंज़न मख्फिया के पर्दों में छुपा हुआ था। इसम नहीं था, जिस्म भी नहीं था, सिर्फ ज़ात थी, इसम और सिफत से पाक थी। उस ज़ाते बारी ताला खुदा वंदे करीम का जब इरादा होता है कि वो अपने आप को ज़हूर में लाए, शान नज़ूल फरमाए, तो वो उसने तनज़्ज़ुल सिफात में आया। यानी तनज़्ज़ुल कहते हैं वो ज़ात से दूसरे जहान में खुद ही गया, एक मर्तबे से दूसरे मर्तबे में तनज़्ज़ुल हुआ, एक शान में दूसरी शान में गया। और ये याद रखें, पहली शान में रहा, दूसरी शान में जब गया तो उससे अफजल वाला हुआ, उससे बेहतर हुआ। ये बेहतर तो वो लफ्ज़ भी कह ले छोटा है अल्लाह ताला के लिए, वो अफजलों से अफजल है, बेहतरों से बेहतर है, मगर शान नज़ूल के लिहाज से उसने बड़ी ही अजीब व गरीब शान दिखाई। ये दूसरा मुकाम था जब तनज़्ज़ुल सिफात में वो आया, यानी मुकाम सिफत में। इसको कहते हैं, कह ले एक तरह का कह ले इसको मुकाम वहदत और हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह सकते हैं आप इसको। अब ज़ाते बारी ताला जलवा फिरोज हुआ, पहले ज़ात में, ज़ात से आया सिफात में। अब ये जब सिफात में आया ना खुदावंदे करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु, तो ये मुकाम था याहूत का, यानी मैं याहूत का खजाना था जिसे सुल्तानुल आरफीन ने रसाला रूही शरीफ में लिखा। यहां पर खुदा शान नज़ूल करता है, कहां? अहदियत से निकला, तन्हाई से निकला, सोचा मेरी सिफात होनी चाहिए, तो उसने अपने आप को सिफात में खुद ही जलवा फिरोज हुआ। याद रखें, सिफात को बाहर से नहीं लाया गया, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई और मौजूद ना था। जब गैर मौजूद ना था तो सिफात खुद से ही निकाल ली गई, यानी खुद ही से कुछ हिस्सों के नाम वो चेंज करता गया और इसी तरह वो कायनात को तख्लीक करता गया। गैर कोई चीज़ नहीं बनाई गई। याद रखे, गैर की हकीकत में आखिर पर जाकर समझाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि वो जब बेइस्म था, बेजिस्म था, अब वो आ गया इसम में। उसके बाद सिफात में उसने तनज़्ज़ुल अस्मा किया, वो अस्मा की तरफ गया, मुकाम लाहूत में आया। सिफात थी, अब नाम में आया, अब उसके नाम रखे गए। ये तायुन था वहदत का। तो जब वो इसमें आया, उसने वहदत में आकर अपने आप को दिखाया, अपने अस्मा इलाही, जैसा कि इसमें अल्लाह ज़ात, ये अल्लाह ताला सिफात से इसम में आया। और ये याद रखें, जो ज़ाती इसमें अल्लाह ज़ात ना, ये अल्लाह ताला ने तो अज़लो अबद वाले दिन अपना कुंतु कंज़न मख्फिया के ख़जानों में जो इसमें ज़ात छुपाया हुआ था वो तो अलहदा है। ये सिफाती अस्मा है जो तीसरे जहान में जाकर, यानी मुकाम लाहूत में जाकर अल्लाह ताला ने वो नाम रखे। जिस तरह कह ले रहमान रहीम, हय्यो कय्यूम, जब्बार, कहार, वाहिद, माजिद, अहद, जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम हैं, सैकड़ों नाम है अल्लाह ताला के। ये जितने भी नाम है वो अपने सिफात से अस्मा की तरफ उसने तनज़्ज़ुल फरमाया। अब वो तनज़्ज़ुल फरमाते हैं मुकाम लाहूत में, उसके बाद वो मुकाम
इससे निकला और शान नज़ूल अब अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्मा से अल्लाह ताला मुकाम आसार की तरफ आते हैं। इसमें आकर तनज़्ज़ुल अफ़आल में, और जब ये अफ़आल में आया अल्लाह ताला ने ये ताजुन कर लिया कि अब मैं मुकाम अफ़आल यानी कुछ ऐसा बनाऊं, अब कायनात को तख्लीक करूं, वो मुकाम इरादे में पहुंचा। जैसा कि वो फ़अहबब्तु उरिफ़ा खलक़तल इंसान, कि उसने इरादा किया कि वो पहचाना जाए। तो ये इरादा मुकाम अफ़आल में अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला की चौथी शान नज़ूल थी। उसके बाद वो मुकाम आसार में आया, उसने अपने आसार को ज़ाहिर किया। मुकाम अजसाम में आया, मुकाम जिस्म में आया, मुकाम हज़रत इंसान में आया। यानी कि इलाहिया, जब उसका मर्तबा इलाहिया था वो इल्मी था। कौनिया हुआ, उसमें अल्लाह ताला ने दिखाना शुरू कर दिया। ये देखो, इसको मुकाम आइनी कहा जाता है। फिर आखिर पर जामे इंसान, अल्लाह ताला इन सारे मरातब से गुजर कर जलवा फिरोज, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं, वहदत, वहदियत, हकीकत मोहम्मदी, उसके बाद अस्मा, सिफात, अफ़आल, आसार, अशकाल, और ये पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में वो ज़ात ने शान नज़ूल किया। अब अल्लाह जो अहदियत में था, याद रखें, उस अहदियत के खुदावंदे अकबर ने जो अपनी शान थी ना, अल्लाह ने उसको कदीम का मुकाम अता फरमाया। और जो जो उसके बाद अल्लाह ताला ने शान नज़ूल किया उसको हादिस कहा जाता है। यानी हादिस का मतलब है वो वापस अल्लाह ही में आएंगे। यानी अगर हकीकत मोहम्मदी है, उसके बाद अमसाल है, अफ़आल है, मरातब, जितने ये मरातब है आलम याहूत के हों, हुवियत के हों, लाहूत, मलाकूत, जबारूत, बाहूत, याहूत, ये नीचे आते हैं नासूत, इन सारे जहानों को वापस अल्लाह ने हुवियत में ही रखा। अल्लाह का इस्म जो था ये परवाज कर रहा था, अल्लाह का इस्म जो था शान नज़ूल कर रहा था, अल्लाह का इस्म जो था ये शक्लें, ये मुकाम, ये जगह बदल बदल कर कहीं अपना नाम हकीकत मोहम्मदी रखता है, कहीं अपना नाम अल्लाह ही, अमसाल, मिसालें देने का जहान, अरवा का जहान, कहीं अपना नाम अल्लाह ताला ने, ये शान थी अल्लाह ताला की जो चेंज करता। फिर मुकाम अजसाम, फिर जामिया इंसान, इसमें आकर जो मरातब अल्लाह ताला के, वो जामिया मर्तबा अल्लाह ने फिर हजरत इंसान में आकर इसको महफूज कर दिया। अब मैं उससे भी आसान तरीके से समझा देता हूँ ताकि लोग कहें यह हदीयत, ये क्या आसमां है, ये क्या चीजें बयान हो रही है। तो याद रखे, इसमें अल्लाह ज़ात जो था ये कुन्तु कंज़न मख्फिया के पर्दों में उसका इसमें ज़ाती छुपा हुआ था, और इसमें ज़ाती जो था वो इसमें अल्लाह ज़ात के भी अंदर था। ज़ाती इसम वो मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि इसमें अल्लाह ज़ात के अंदर ज़ाती इसम कौन सा छुपा हुआ था। इसमें अल्लाह ज़ात उसके बाहिर का एक कह ले दिखाने के लिए एक इसम था। इसके बातन का, इसमें अल्लाह ज़ात का बातन का जो इसम था वो खुदाए वहदहु ला शरीक का था। अब जो जो भी इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करता है उसके आगे वो इसम जाहिर होता है। हर एक के लिए वो अलहदा अलहदा होता है, क्योंकि वो राज़े इलाही है, वो सिर्र इलाही है। यहां पर आकर हदीस कुदसी वारद होती है, अल इंसान सिर्री व अना सिर्रुहु, ये मेरा भेद है, मैं इसका भेद हूं। यानी अल्लाह इसको अपना राज अता करता है। इसम अल्लाह का तसव्वुर कर करके कर ये याद रखे, इसमें अल्लाह ज़ात एक निशाना है। इसमें अल्लाह ज़ात का निशीन इसम जो है वो उनको मिलता है जिन पर इसमें अल्लाह ज़ात का दरवाजा खुल जाता है। ये इसम की सारी मैंने वहदतुल वजूद सैर बयान की है। अल्लाहु अकबर। ये सैरे याहूत से नासूत तक, हजरत इंसान तक जो सैर आई, इस सैर को वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद कहा जाता है। अब ये अल्लाह का शान नज़ूल था कि वो सुपर पावर अल्लाह
शान नज़ुल करता अहदियत में, हकीकत मोहम्मदी में, अमसाल में, सिफात में, अजसाम में, फिर ये पूरी कायनात की अशकाल में, फिर जामिया इंसान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान तजल्ली फरमाता गया अपनी शान के मुताबिक। इनमें जलवा फिरोज होता रहे। गैर खुदा नहीं था, ना गैर की कोई गुंजाइश। ये गैर खुदा का रोला डालने वाले एक नंबर के अनपढ़ और जाहिल लोग हैं। अगर आप खुदा की खुदाई को समझना चाहते हैं, इब्न अरबी मुहय्यिद्दीन से सीखें, हजरत गौसे आजम से सीखें, हजरत मौला अली शेर खुदा से सीखें, अल्लाह की कसम खुदा की तौहीद मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखें कि जिन्होंने तौहीद सबसे पहले बयान की थी। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ऐ लोगों, अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है। यानी अल्लाह जात है, नूर उसकी सिफात है। पूरी कायनात खुदा की सिफात है और सिफात का जात से ताल्लुक होता है और जात का सिफात से ताल्लुक होता है। आप कभी भी सिफात को जात से जुदा नहीं कर सकते और जात को सिफात से जुदा नहीं कर सकते। ये दोनों जुदा है भी नहीं, ये एक ही जात के दो रुख है। ये दो रुख होकर भी एक जात है, यानी जात है तो सिफात है। अब सिफात उसकी आई मुकामों में चलती चलती चलती, कभी वो सिफत अस्मा में आ गई, ऐसे तनज़्ज़ुलात करती करती कभी वो सिफात में आई, कभी वो अस्मा में आई, कभी अफ़आल में आई, कभी अशकाल में आई, अजसा में आई, हजरत इंसान। ये सिफात जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है, मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम का भी कौल है कि हर इंसान में खुदा की सिफत है। हर इंसान में, चाहे वो किसी मजहब का हो, सिफत ज़ात उसमें भी मौजूद है। और नबी पाक ने यह भी फरमाया, पूरी कायनात अल्लाह की अस्मा की बरकत से बनी है और ये हर तरफ सिफात इलाही के जलवे बिखरे पड़े हैं, सिफात इलाही के जलवे। और अल्लाह की कसम, इन सारे जहान के सिफाती जलवों में सबसे बड़ा खुदा का सिफाती जलवा आजम वो हजरत इंसान है। अब हजरत इंसान तौहीद से बाहर नहीं है। तौहीद बारी ताला की शान नज़ूल वो उस नूरे अजली अबदी का सफर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हकीकत मोहम्मदी में आया, अरवा में आया, अजसाम में आया, अशकाल में आया, अस्मा में आया, सारे जहान की सिफात में आया। हकीकत में वो एक ही जात है जो सारे जहान में जलवा फिरोज है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये वहदतुल वजूद है, दूसरे की गुंजाइश नहीं है। ये जो गैर खुदा की रट लगा कर बैठे हैं, ये गैर खुदा वो है जिन्होंने अपने जहनों में गैर खुदा को बनाया। यानी अब वो गैर खुदा खुद नहीं थे, मगर उनकी जो सोच थी शैतान ने बनाई उन लोगों की, कि ये सोच थी कि हम माज़अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह कि हम खुदा के बराबर हैं या हम खुदा हैं। ये उनकी सोच थी। सोच शिरक है, दुनिया में शिरक कोई नहीं है। सोचने का अंदाज शिरक है, ख्यालात शिरक है, लेकिन शिरक की गुंजाइश नहीं है। अहले तसव्वुफ मेरे इन बारीक और मेरे इन मुश्किल तरीन लफ्जों को समझते होंगे कि दुनिया में शिरक यानी खुदा के बराबर कोई शय है ही नहीं और खुदा की जात के बाहर भी कोई शय है ही नहीं। तो ये जो शिरक है ये उन बुतों की सोच थी, उसके बाद उनके पैरोकारों की सोच थी कि ये खुदा हैं, जबकि वो खुद खुदा नहीं थे। शिरक की गुंजाइश नहीं है, खुदा के अलावा किसी खुदा की गुंजाइश दुनिया में नहीं बनती। उनकी सोच उनको ले डूबी। तो जो ये सोचते हैं कि हम खुदा माज़अल्लाह के, ये सोचते हैं कि वो खुदा हैं या खुदा के वो बराबर हैं, तो ये सोच शिरक है। तो फकीर तो सबसे पहले अपनी सोच का मरकज इसमें अल्लाह जात बनाते हैं। आरिफीन से पूछ, आरिफीन कहते हैं अपना मरकज इसमें अल्लाह जात को कर ले, इसमें अल्लाह जात में अपने आप को फना कर दे। तो सबसे पहले तो हमारी सोच के तुखम जो डाला जाता है सोच में, वो इसमें अल्लाह जात का यानी एक मरकज का डाला जाता है कि तेरी सोच,
तेरी सोच का महवर एक मरकज होना चाहिए, यानी इसमें अल्लाह ज़ात। और जब इसमें अल्लाह ज़ात हमारी सोच का पूरा मरकज बन जाता है, शिरक की हवा भी नहीं हमारे पास से गुजरती, बल्कि हमने शिरक कभी देखा ही नहीं, शिरक कभी सोचा भी नहीं। क्यों नहीं? हमने अपने आप को ज़ाते खुदा के हवाले कर दिया, क्योंकि खुदा से ही निकली हुई सारी, खुदा की ज़ात से ही अलहदा शान नज़ूल थी, जिसको सिफात इलाही, अस्माए इलाही कहा जाता था। वो सारी सिफातें वापस, मिसाल है इंसान वापस जाता है कहाँ? अपने अस्मा में वापस जाता है, अपनी अरवा में, अरवा वापस जाती है अफाल में, अफाल वापस जाते हैं अस्मा में, अस्मा वापस जाती है सिफत में, सिफत वापस जाती है मौसूफ में, यानी ज़ात में। यही सफ़र है जिसको कहा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ जाएंगे, यानी अहदियत से इसमें अल्लाह ज़ात का रंग लेकर ये सफ़र करता हुआ आलमे हाहूत से याहूत में आया, याहूत से आलमे मालाकूत में आया, आलमे लाहूत में आया, आलमे मालाकूत में आया, आलमे जबारूत में आया, आलमे नासूत में आया। इसी तरह ये सारे जहानों की सैर करता, इस नासूती जहान में आकर इसने अपना नाम हजरत इंसान, जामिया खुदा का जो शाहकार आज़म है, हजरत इंसान है। और ये भी सुन ले, सारी सिफातों में से बड़ी सिफात, सारे जलवों में से बड़ा जलवा, सारे शाहकारों में से बड़ा शाहकार, सारे खुदा के तिलिस्मों से बड़ा तिलिस्म, खुदा के मौजज़ात से बड़ा मौजज़ा, खुदा की कुदरत की निशानियों से बड़ी निशानी हजरत इंसान है। इंसान ही वो बड़ी निशानी है जिसको हुज्जतुल्लाह कहा गया। खुदा की सिफात को नबी या वली नहीं बनाया गया, खुदा की अरवाह को नबी या वली नहीं बनाया गया। उसके बाद ये जितने तनज़्ज़ुलात ज़ात करती गई, वाहिद इंसान है जिसको नबी भी बनाया गया, वली भी बनाया गया, वाहिद इंसान है जिसको सिफत भी बनाया गया, जिसको अस्मा भी दिया गया, वाहिद इंसान है जिसमें रूह भी डाली गई, अफ़आल भी दिए गए, वाहिद इंसान है जिसे कुन्तु कंज़न मख़फ़िया के पर्दों में छुपा हुआ खजाना कहा गया, वाहिद इंसान है जिसकी पहचान खुदा की पहचान कही गई। वह दुनिया में इंसान खुदा की वो आखिरी शाने तजल्ली है, शान नज़ूल है, जिसको खुदा का ऐन शाहिद, खुदा की शक्ल सूरत कहा गया। इन्नल्लाह खालका आदम अला सूरतिही, हमने इंसान को अपनी शक्ल पर पैदा फरमाया। खुदा ऐसे जलवा फिरोज हुआ। फिर सुन ले, इंसान खुदा नहीं है। हर चीज जो खुदा से निकली है, निकली का मतलब यह है जो खुदा की शान नज़ूल हुई है, वो सब के सब कदीम नहीं है, हादस है, जिंदा नहीं है, मुर्दा होंगे। सिर्फ अहदियत के जहां पे उसने तायुन अहदियत का किया, तन्हाई का किया, मुकामे हाहूत हुवियत की हा में किया, वहां पर खुदाए बुजुर्गो बरतर ने अपने लिए मौत ना, इसके बाद जितने भी उसने तायुन किए, मिसाल के अहदत का, वहदत का, वहदियत का, और जिसके बाद जितने भी वो ये हकीकत मोहम्मदी में आया, मुकाम अफ़आल में आया, अरवा में आया, फरिश्तों में आया, जन्नत में आया, ये पूरे जहान में उसके जो शान नज़ूल आए, सबको मौत रख दी। मौत किसे कहते हैं ये भी सुन ले। मौत उस सफर को कहते हैं कि वापस उसी तरफ जाना है। बस मौत एक रुख होता है, जा वो मौत की तरफ ही होता है, यानी वापस अल्लाह ही की तरफ हर बंदा जा रहा है। मगर मौत कहते हैं उसका अचानक रुख बदल देना, यानी वही बंदे गड्डी इधर नुपाला, वो सिर्फ एक रुख पकड़कर मोड़ दिया, चलो भाई ये यहां से आए थे यहीं में वापस जा रहे हो, यानी कि अल्लाह के नूर से आए थे, नूर में ही वापस जा रहे। ये एक नूरी सफर है हजरत इंसान का, कि अल्लाह पाक से ये नूरी सफर चला, मुकाम इंसान में आया, अशकार में आया, जहान के जर्रे जर्रे में वो जलवा आया। अलम तरा कैफा युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ए मेरे हबीब क्या ना देखा आपने कि जमीन और आसमान में जितने जर्रे जर्रे भी हैं, हर चीज अल्लाह की नमाज और हम्द व सना में मसरूफ है। ये थी वहदतुल वजूद व शहूद।
कोई चीज गैर मौजूद ना थी सिवाय ज़ात इलाही के। पूरी कायनात उस ज़ात इलाही ने उस कायनात को घेरा हुआ है। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, जैसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया उसकी वहदानियत ने जमीन और आसमान को घेरा हुआ है। यानी कोई चीज खुदा की वहदानियत से बाहर नहीं है, हर चीज खुदा की जात में ही मौजूद है। हाँ, सोच उसको हस्ती बनाती है और सोच ही यार की मस्ती में ले जाकर उसको यार की खुदा की शराब तहूरा का जाम पिलाकर उस पर सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ाती है। अब सोचों को पाक करने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ने इसमें अल्लाह का और इसमें मोहम्मद का तस्वुर दिया है। लोगों, सोचों का मरकज पाक करो, अपनी हस्ती ना बनाओ, खुद मुशरक ना बनो, अपने आप को इसमें अल्लाह में फना कर दो। जो बने अल्लाह बने, तुम बनो ही ना। बंदा खुदा नहीं बन सकता, याद रखे। बंदे की हैसियत नहीं है खुदा बन सके, औकात नहीं है ये खुदा बन सके, क्योंकि हर चीज खुदा के बाद हर चीज को मौत है। अल्लाह, बंदा खुदा नहीं बन सकता, खुदा जिसका मर्जी जलवा बन सकता है। खुदा जिस सिफत में चाहे, जिस चीज में चाहे, खुदा अपनी जात का जलवा दिखा सकता है, सिफात का जलवा दिखा सकता है, अस्मा का जलवा दिखा सकता है। अल्लाह ताला अपनी सूरत का जलवा दिखा सकता है, अल्लाह अपने अस्मा का जलवा दिखा सकता है। अल्लाह जिससे चाहे अपने इल्म का जलवा दिखा सकता है, अपने अफ़आल यानी मौजज़ात का जलवा दिखा सकता है। अल्लाह अपने इल्म का जलवा जिससे मर्जी दिखा सकता है। अल्लाह अपने कुदरत का जलवा जिस बंदे से चाहे दिखा सकता है, पर बंदा खुदा के जलवे नहीं दिखा सकता। अल्लाह बंदे में आकर जिसके मर्जी जलवे दिखाए, इसको वादतुल वजूद कहा जाता है। बंदा खुदा नहीं बन सकता, याद रखे। फिर मैं कह दूं आपको, खुदा जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर इंसान में मौजूद है। कुरान फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तुम्हारे नफूस के अंदर हूं, क्या तुम मुझे देख नहीं रहे। अल्लाह कह रहे हैं मैं बंदे में तेरे अंदर मौजूद हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी वादतुल वजूद कह रही है आपको। तो ये अल्लाह ताला की सैरे लाहूती है जो मुकामे हाहूस से चली, इससे बशरी तकाजे में आई, और बशरी तकाजे की आज ये मेहनत है जो समझाया जा रहा है। कोई सुल्तान बाहू बनकर समझा रहा है, फ़कीर नूर मोहम्मद इरफान लिखकर समझा रहे हैं, साईं महबूब पीर आपको बयानात कर सकें। आप पर मेहनत इसलिए कर रहे हैं, बंदो आलम नासूत में आ गए हैं, अपने सोच के शिरक से निकलो और अपने ख्यालात की कुफर से निकलो और नासूत से मुकाम मलाकूत में आओ। फरिश्तों के जहान की सैर करो, औलिया के जहान की सैर करो, फिर इसके बाद आलम जबारूत में आओ, आशिकों के जहान की सैर करो। आओ, पीर तरीकत आपको वहां पे ले जाता है, उसके बाद बाजू पकड़ता है, आलम लाहूत में ले जाता। आओ, खुदा का दीदार करो, फिर आलम लाहूत से फिर आलम बाहूत में ले जाता है, आलम याहूत में ले जाता है, आलम हाहूत की हुवियत की हा में ले जाता है कि आ देख तू कहां से सफर करता हुआ आया। हजरत सुल्तानुल आरफीन सारी जिंदगी यही फलसफा लोगों को देते रहे कि लोगों आओ अपनी हकीकत को जानो। समंदर था, समंदर से कतरा जुदा हुआ, वो अपने आप को कतरा कहने लग गया, जबकि ये कतरा नहीं था, ये समंदर से निकला हुआ ही समंदर था। इस सफर का वापसी नाम जो है, इसको नूरी सफर कहा जाता है। खुदारा दोस्तों, अपनी पहचान करें। ये शिरक और कुफर और ये गैर खुदा की गुंजाइश अल्लाह की कसम नहीं है। इसमें अल्लाह ज़ात का ये सफ़र है, इसमें ज़ात का सफ़र चलता चलता अब आलम नासूत में पहुंचा है। अब हम इंशाअल्लाह बताएंगे आपको इसमें अल्लाह ज़ात का सफ़र वो वहदत के पर्दों से, अहदियत के पर्दों से कैसे मदीनातुल मुनव्वरा में हज़रत जनाब सैयदी व मुर्शदी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलम नशरा के पाक सीने के पाक कल्बे सलीम में उतरा। इंशाअल्लाह अगले बयान में हम बताएंगे हजूर को वो इसम कैसे मिला था, हजूर को वो इसम कमली वाले को कैसे मिला था जो अहदियत के पर्दों में छुपा हुआ और आज भी पुकार रहा है कोई जिसमें इसमें बामुसम्मा करने वाला है, कोई अपने आप को मुकाम इंसान से मुकाम अफ़आल
व सिफात व अस्माओ हकीकत मोहम्मदी और वापस उसी जहान इलाहिया में लाने वाला यानी आलम लाहूत का शहबाज, जिसके अंदर ये इसमें अल्लाह ज़ात जाके कल्ब पर लग जाए, सब्त हो जाए, लिखा जाए। है कोई ऐसा शहबाज लामकानी? इसम आज भी ढूंढ रहा है उस जिस्म को कि जो अपने जिस्म को इसम में फना कर दे। आज भी इसमें अल्लाह ज़ात हर घर में होता है। हर कुरान का पहला सफ़ा खोले तो इसमें शुरू करता हूँ इसमें अल्लाह ज़ात से। कोई बंदा कहता है या अल्लाह मदद, इसमें अल्लाह, या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको हर जगह इसम ढूंढ रहा है और हम छुप रहे हैं इसम से। हम कहते हैं हमने इसम की तरफ, जबकि इसम बार बार कह रहा है कि इसम को जिस्म में कर ले और अपनी हकीकत को पहचान। ये बशरी चोला उतार और इस बशरी लबादे से निकल और आलम याहूद का शहबाज लामकानी बन जा। अपनी पहचान कर। इसी पहचान का नाम वहदतुल वजूद है। इसी पहचान का नाम इसमें अल्लाह ज़ात की वो सैर है जो आसमानों से होती ज़मीन पर मदीनातुल मुनव्वरा में आई। इंशाअल्लाह अगले बयान में बताएंगे कमली वाले महबूब को वो इसमें ज़ात कैसे मिला। और सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू फरमाते बन चलाया तरफ ज़मीं दे, अर्शों फर्श टकाया हूँ, घर थी कड्या देश निकालिया, असल लिखिया झोली पाया हूँ, रे दुनिया ना कर झेड़ा, साडा अगे दिल घबराया हूँ, असी मुसाफर साडा वतन दुराडा या हजरत बाहू, और साडे दम दम गम सवाया हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को इसम के इस सफ़र के साथ चलने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह ये इसम अर्शे मुअल्ला से मदीना में आया, मदीना से कैसे नजफ़ में, बगदाद में, शोरकोट में, कुलाची में और आज हम तक। इंशाअल्लाह इस पूरे इसम की सैर हम बताएंगे। इसमें ज़ात कैसे मिलता है, अहदियत के पर्दों में कैसे उसको हासिल करना है, इंशाअल्लाह अगले बयान में हम बताएंगे। अल्लाह ताला हम सब को वहदतुल वजूद को, इल्म मारिफत को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।